Jai Hind. Today's lecture we will study Introduction of Hamming code. Hamming code is given by R.W. Hamming. It is error correcting code. What is error correcting code? It is used to detect and correct error. Generally, with the help of Hamming code, we can detect one-bit error. We can also calculate the location in which one-bit error has been occurred. पहले के लेक्चर में हमने पैरिटी कोड डिस्कस किया था. पैरिटी कोड इज ए एरर डिटेक्टिंग कोड. विद द हेल्प ऑफ पैरिटी कोड वी कैन डिटेक्ट वन बिट एरर what we cannot calculate the location in which error has been occurred. So simply with the help of Hamming code we can detect and correct the error. That is the reason it is known as error correcting code. In Hamming code we send data along with the parity bits or redundant bits. Hamming code के केस में हम मैसेज बिट्स के साथ एक्स्ट्रा पैरिटी बिट्स ऐड करते हैं और ये जो पैरिटी बिट्स होंगी वो हमेशा एक से ज्यादा होंगी. तो सिंपली k इज इक्वल टू मैसेज बिट्स, n इज इक्वल टू टोटल बिट्स. टोटल बिट्स आर n इज इक्वल टू k प्लस पैरिटी बिट्स. तो सिंपली p इज इक्वल टू n माइनस k. हाउ मैनी एक्स्ट्रा पैरिटी बिट्स we have to add in original message bits? Following formula should be satisfied. 2 to the power p should be greater than equal to p plus k plus 1. p is equal to parity bits, k is equal to message bits. So left hand side should be either greater than or equal to right hand side. We have given this message. We have to transmit it. पहले इसको हमें हैमिंग कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो सिंपली k हमें दिया है नंबर ऑफ मैसेज बिट्स. मैसेज बिट्स आर 4, 1 2 3 4. नाउ वी हैव टू ऐड पैरिटी बिट्स. हाउ मैनी पैरिटी बिट्स वी हैव टू ऐड? फॉलोइंग इक्वेशन शुड बी सेटिस्फाई. क्लास अगर मैं पैरिटी बिट 2 लेता हूं, p इज इक्वल टू 2, 2 to the power 2 4. 4 should be greater than equal to p is equal to 2, k मैसेज बिट्स हैं 4 प्लस 1. तो 4 should be greater than equal to 7. This is not satisfied. अगर पैरिटी बिट्स हम 3 लेते हैं, 2 to the power 3 8 greater than equal to p is equal to 3 plus k is equal to 4 plus 1. 3 plus 4 7 plus 1 8. तो सिंपली 8 is equal to 8. तो सिंपली we have to add 3 parity bits. टोटल पैरिटी बिट्स हैं 3. तो सिंपली n is equal to 7. दिस इज 7-bit हैमिंग कोड. अब क्लास फर्स्ट पैरिटी बिट की पोजीशन होगी 2 to the power 0, दैट इज 1. दिस इज p1. सेकेंड पैरिटी बिट की पोजीशन होगी 2 to the power 1, that is 2. This is p2. सेकेंड पैरिटी बिट की पोजीशन होगी 2 to the power 2. 2 to the power 2 4 होता है, that is p4. तो सिंपली 3 पैरिटी बिट्स होंगी p1, p2, this is p2, this is p4. Remaining are data bits. This is d3, d5, d6, d7. These are the data bits जो हमें ओरिजिनल मैसेज दिया है. This is d3. d3 is equal to 1. This is d5. d5 is equal to 1. This is d6. d6 is equal to 0. This is d7. This is 1. आपको कैसे याद रखना है? दिस इज ए लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, दिस इज ए मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. तो सिंपली D3 में हमने लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 एंटर करनी है, D5 में 1 एंटर करना है, इसी तरह से D6 में 0 एंटर करना है. दिस इज ए मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और 1 यहां पर पुट करना है. दिस इज P4, P2, P1.
अब P4, P2 और P1 की क्या वैल्यू लेनी है, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इवन पैरिटी यूज करेंगे या फिर ओड पैरिटी यूज करेंगे। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो दिस इज ए 7-bit हैमिंग कोड। दिस इज ए ओरिजिनल मैसेज। In original message, B added 3 parity bits. Why B added 3 parity bits? This equation should be satisfied. And finally, at result, B will get 7-bit हैमिंग कोड। कम्युनिकेशन में हैमिंग कोड को ट्रांसफर किया जाता है। B have given this message bits. हमको इसे हैमिंग कोड में कन्वर्ट करना है। K हमें दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8. K is equal to 8. Now B have to add parity bit in original message bits. How many parity bits B have to add in original message bits? B have to calculate it from this equation. अगर मैं P की वैल्यू 2 लेता हूं, 2 to the power 2 4 ग्रेटर देन इक्वल टू P2 है, K की वैल्यू 8 है प्लस 1। अब 4 11 से बड़ा नहीं होता है, तो सिंपली पैरिटी बिट हम 2 नहीं लेंगे। आइदर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से बड़ी होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए, दोनों में एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पैरिटी बिट 3 पे चेक करते हैं। P इज इक्वल टू 3, 2 to the power 3 8 ग्रेटर देन इक्वल टू P इज इक्वल टू 3, K इज इक्वल टू 8 प्लस 1। तो सिंपली 8 12 से बड़ा नहीं होता, तो पैरिटी बिट 3 भी नहीं लेंगे। अब P 4 पे चेक करते हैं। अगर हम पैरिटी बिट 4 लेते हैं, 2 to the power 4 16 ग्रेटर देन इक्वल टू P की वैल्यू है 4, K की वैल्यू है 8 प्लस 1, 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13। अब क्लास 16 13 से बड़ा होता है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, तो सिंपली हम पैरिटी बिट्स 4 लेंगे। तो टोटल बिट्स होंगी n इज इक्वल टू K प्लस P। K है 8, P है 4, 8 प्लस 4 12। तो रिजल्टेंट होगा वो 12 बिट हैमिंग कोड होगा। अब क्लास 4 पैरिटी बिट की लोकेशन क्या होगी? डेट इज 2 to the power 0, डेट इज 1, दिस इज P1। तो फर्स्ट पोजीशन होगी दिस वन। सेकंड 2 to the power 1, डेट इज 2, दिस इज P2, दिस इज P2। तो यहां पर हम सेकंड पैरिटी बिट ऐड करेंगे। थर्ड पैरिटी बिट की लोकेशन होगी 2 to the power 2, पहले 0 लेना, 1 लेना, 2 लेना है। 2 to the power 2 4, डेट इज P4, दिस इज थर्ड पैरिटी बिट। फोर्थ पैरिटी बिट की लोकेशन होगी 2 to the power 3, 2 to the power 2 था, अब 2 to the power 3 लेना है, डेट इज 8, दिस इज P8। तो दिस इज ए फोर्थ पैरिटी बिट लोकेशन। रिमेनिंग आर डाटा बिट्स D3, D5, D6, D7, D9, D10, D11, D12। अब ये हमें ओरिजिनल मैसेज दिया था, तो D3 क्या होगा? दिस इज D3, D3 होगा 1। सेम D5 होगा, दिस इज D5 1, दिस इज D6 0, दिस इज D7 1, दिस इज D9 डेट इज 1, दिस इज D10 0, दिस इज D11 1, दिस इज D12 1, and these are the parity bits। अब पैरिटी बिट की वैल्यू क्या होगी वो डिपेंड करेगा कि हम इवन पैरिटी यूज करते हैं या फिर ओड पैरिटी यूज करते हैं। इनिशियली हमें ये मैसेज दिया था, पहले हम इसको हैमिंग कोड में कन्वर्ट करेंगे, तो n इज इक्वल टू K प्लस B। हाउ मैनी पैरिटी बिट्स आर रिक्वायर्ड? 4। फ्रॉम दिस इक्वेशन यू विल कैलकुलेट पैरिटी बिट्स। तो सिंपली टोटल बिट्स बनेगी 12, यहां पर हमने 12 बिट्स ले ली हैं। पैरिटी बिट की लोकेशन क्या होगी वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2 and 2 to the power 3। B have given this message, हमने इसको ट्रांसमिट करना है। पहले हम इसको हैमिंग कोड में कन्वर्ट करेंगे। व्हाट इज हैमिंग कोड? n इज इक्वल टू K प्लस B। मैसेज बिट्स में हम एक्स्ट्रा पैरिटी बिट ऐड करते हैं। व्हाट इज K? नंबर ऑफ बिट्स इन ओरिजिनल मैसेज।
तो देयर आर 2 बिट्स, तो k इज इक्वल टू 2 प्लस p इज इक्वल टू n। हाउ मैनी पैरिटी बिट वी हैव टू ऐड? सिंपली ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पैरिटी बिट हमेशा एक से ज्यादा होगी। अगर मैं p2 लेता हूं, 2 टू द पावर 2 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू p, हमने 2 लिया है, k यहां पर 2 है प्लस 1, तो सिंपली 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब क्लास 4 5 से बड़ा नहीं होता है, तो सिंपली पैरिटी बिट हम 2 नहीं लेंगे। अब p इज इक्वल टू 3, 3 पे चेक करेंगे, 2 टू द पावर 3 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 प्लस k की वैल्यू है 2 प्लस 1, डेट इज 8 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6। 8 6 से बड़ा होता है, या बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो सिंपली पैरिटी बिट्स हम 3 लेंगे, तो n इज इक्वल टू 2 प्लस 3 5। अब जो हैमिंग कोड होगा वो 5 बिट्स का होगा, 1 2 3 4 5। अब 3 पैरिटी बिट्स की लोकेशन क्या होगी? फर्स्ट पैरिटी बिट की लोकेशन होगी 2 टू द पावर 0, सेकंड पैरिटी बिट की लोकेशन होगी 2 टू द पावर 1, थर्ड पैरिटी बिट की लोकेशन होगी 2 टू द पावर 2। दिस इज 2 टू द पावर 0 1, डेट इज p1। दिस इज 2 टू द पावर 1 2, डेट इज p2। दिस इज 2 टू द पावर 2 4, डेट इज p4। तो सिंपली p1 पैरिटी बिट होगी, p2 पैरिटी बिट होगी, p4 पैरिटी बिट होगी। Remaining bits are data bits, that is D3, D5. अब क्लास दिस इज ए लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, दिस इज ए मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है दिस इज ए D3। आपने राइट टू लेफ्ट चलना है, यहां भी राइट टू लेफ्ट चलना है, तो D3 की वैल्यू है 1, D5 की वैल्यू है 1। दिस इज P4, P2 एंड P1। तो दिस इज ए 5 बिट हैमिंग कोड। हमें इसको ट्रांसफर करना था, पहले हम इसको हैमिंग कोड में कन्वर्ट करेंगे। हैमिंग कोड के केस में हम 3 एक्स्ट्रा पैरिटी बिट ऐड करेंगे, और ये जो हैमिंग कोड होगा इसको हम कम्युनिकेशन चैनल में सेंड करेंगे।